Hello everyone, how are you? I hope you all are well. So today we start topic biodiversity, Jai Vivita. This is the very important topic and this topic belongs to environment, ecology and biodiversity. How is it and why does it matter? Biodiversity tries to measure the variation among organisms in a community or ecosystem. जैव विविधता किसी समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच भिन्नता को मापने का प्रयास करती है। बट हाउ इज बायोडाइवर्सिटी मेजर्ड? लेकिन जैव विविधता को कैसे मापा जाता है? इज देयर ए सिंगल बेस्ट वे टू मेजर बायोडाइवर्सिटी? क्या जैव विविधता को मापने का कोई एक सबसे अच्छा तरीका है? नाउ imagine this, you look out onto a busy city street and everyone looks exactly the same. They speak in the same voice. They all have the same actions and mannerisms. They wear the same clothes. This would feel very strange. We intuitive know that this situation cannot happen in a city because no two people are the same. We live in a world of the endless variety that is true among humans and among all living things. We use the word biodiversity to describe that variety. कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यस्ततम शहर की सड़क पर नजर डाल रहे हैं और हर कोई आपको एक जैसा दिखता है, एक ही आवाज में बोलते हैं, सभी के काम और तौर तरीके एक जैसे हैं, वे एक जैसे कपड़े पहनते हैं। ये बहुत ही अजीब लगेगा। हम जानते हैं कि यह स्थिति शहर में नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। हम अनंत विविधताओं वाली दुनिया में रहते हैं। यह मनुष्यों और सभी जीवित चीजों के लिए सच है और हम इसी डाइवर्सिटी का वर्णन करने के लिए जैव विविधता शब्द का उपयोग करते हैं। Let us explore biodiversity, its importance, way to measure it, and in doing so celebrate some of the beauty and wonder of our natural world. Firstly, you know what is biodiversity. Understanding how biodiversity sustains us is crucial for our own well-being. All of the diversity of the life we see in our planet has evolved over millions of years. We have evolved alongside them. The plants and animals that provide us with food and medicines, the bacteria in our gut that do a lot of our digestion, and the fungi that break down any recycling waste back into the ecosystem. The rich variety of life makes ecosystems functions. In addition to all the tangible ways that nature contributes to our well-being, there are a whole host of intangible contributions, beauty, inspiration, relaxation, culture that come from biodiversity for us. The United Nations Convention on Biological Diversity defines biodiversity as the variability among living organisms from all sources including inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species
and of ecosystems. मीन्स आप ये समझें कि बायोडाइवर्सिटी हमें कैसे बनाए रखती है, यह समझना अपने कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे ग्रह पर हम जो लाइफ डाइवर्सिटी देखते हैं वो लाखों वर्षों में विकसित हुई है। हम उनके साथ साथ विकसित हुए हैं। पौधे और जानवर जो हमें भोजन और दवा देते हैं, प्रदान करते हैं। हमारे पेट में बैक्टीरिया जो हमें पाचन का बहुत काम करते हैं, और फंगी जो वेस्ट को तोड़कर इकोसिस्टम में वापस रिसाइकल करते हैं। जीवन की समृद्ध विविधता इकोलॉजिक सिस्टम को कार्य करने में सक्षम बनाती है। नेचर द्वारा हमारे कल्याण में योगदान देने के सभी टेंजिबल मीन्स मूर्त तरीकों के अलावा हमारे लिए जैव विविधता जैसे कई अमूर्त इनटेंजिबल योगदान मिलते हैं, जैसे सौंदर्य, प्रेरणा, विश्राम, संस्कृति। जैव विविधता पर यूनाइटेड नेशंस समिट्स बायोडाइवर्सिटी को इस प्रकार डिफाइन करती है। वो कहते हैं, उनके अनुसार यह है कि सभी सोर्सेस से जीवित जीवों मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच परिवर्तनशीलता, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और वे पारिस्थितिकी तंत्र परिसर में शामिल हैं जिनका वे हिस्सा है। इसमें प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता शामिल है। बायोडाइवर्सिटी tries to measure such variation among organisms in a community or ecosystems. It can be measured in different way using different metrics. जैव विविधता किसी भी कम्युनिटी या इकोलॉजिक सिस्टम में जीवों के बीच इस तरह की भिन्नता को मापने का प्रयास करती है। इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग मैट्रिक्स का उपयोग करके मापा जा सकता है। We would never expect that class, caste, gender or any single excess or difference in human would fully explain the diversity of life experiences present in a group of humans. That view would be simplistic and naive, and the same is true for biological life. In fact, no single way of measuring biodiversity is the best. Rather, we have to choose which measures to use in each situation. हम कभी यह उम्मीद नहीं करेंगे कि मनुष्यों में क्लास यानी वर्ग, नस्ल, लिंग या मतभेदों का कोई भी एक अक्ष मनुष्यों के समूह में मौजूद जीवन के अनुभवों की विविधता को पूरी तरह से समझाएगा। यह दृष्टिकोण सरल और सीधा होगा, और जैविक जीवन के लिए भी यही सच है। वास्तव में बायोडाइवर्सिटी को मापने का कोई एक तरीका सबसे अच्छा नहीं है, बल्कि हमें यह चुनना होगा कि प्रत्येक स्थिति में किस उपयोग का उपयोग करना है। Let us try different ways of measuring and categorizing the differences between people in a busy city and see how that relates to biodiversity. तो आइए हम एक व्यस्त शहर में लोगों के बीच के अंतर को मापने और उसे क्लासिफाइड करने के विभिन्न तरीकों को आजमाएं और देखें कि ये बायोडाइवर्सिटी से कैसे संबंधित है। We can group people by the ancestry trace parents and children across generations. A century ago, this would be done by documenting actual lineages, but today it can be done by analyzing DNA. The scientific term for this is phylogeny. You can analyze certain regions of DNA that change very slowly and are common to nearly all life. This result in a tree of life with organisms that are closer together, having a common ancestor more recently than organisms that are far apart. If you measure the diversity of life in a group by this method, we get phylogenetic diversity, also called genetic diversity. This kind of diversity is intuitive to describe, but it's quite complex to operationalize into a measure. बायोडाइवर्सिटी को मापने का एक तरीका है, जिसे हम क्लासिफाइड कहते हैं।
अब हम लोगों को उनके वंश के आधार पर समूहीकृत कर सकते हैं, जैसे पीढ़ियों में माता पिता और बच्चों का पता लगा सकते हैं। एक सदी पहले यह वास्तविक वंशावली का दस्तावेजीकरण किया जाता था, लेकिन आज यह डीएनए का विश्लेषण करके किया जा सकता है। इसके लिए साइंटिफिक शब्द फाइलोजेनी है। आप डीएनए के कुछ क्षेत्रों का एनालिसिस कर सकते हैं जो बहुत धीरे धीरे बदलते हैं और लगभग सभी जीवन के लिए समान है। इसका परिणाम जीवन के वृक्ष के रूप में होता है, जिसमें एक दूसरे के करीब रहने वाले जीवों का हाल ही में एक समान पूर्वज होता है, न कि दूर रहने वाले जीवों का। यदि हम इस मेथड से समूह में जीवन की विविधता को मापते हैं तो हमें फाइलोजेनेटिक विविधता, जिसे कि हम आनुवांशिक विविधता भी कहते हैं, में मिलती है। इस तरह की विविधता का वर्णन करना सहज है, लेकिन इसे माप में परिचालित करना काफी जटिल है। We can also group people by occupation, performing different roles within the society. A small village might have fewer occupations present, and many people will be performing multiple roles. A large city will have people who are able to devote their full time to very specialized occupations. This diversity of occupation is called functions diversity or ecological diversity. मीन्स हम लोगों को व्यवसाय के आधार पर सामूहिकृत कर सकते हैं, जैसे कि समाज में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए एक से छोटे से गांव में कम व्यवसाय मौजूद हो सकते हैं और कई लोगों की कई भूमिकाएं निभाएंगे। एक बड़े शहर में ऐसे लोग होंगे जो अपना पूरा समय बहुत ही स्पेसिफिक व्यवसाय को समर्पित करने में सक्षम होंगे। व्यवसायों की इस विविधता को कार्यात्मक विविधता या इकोलॉजिक बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। फंक्शनल डाइवर्सिटी इन बायोलॉजी मेजर्स हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इन टर्म्स ऑफ what they are doing in their environment and interacting with other organisms. For example, compared to communities of insects that we find on two different patches of forest floor, community A has dung beetles, yellow dung flies, and two species of the millipedes. Community B has a dome beetles, a ground nesting bee, crickets, and one species of ant. Community A only has species that are very similar in function. They all eat animal dung and decompose material on the forest floor. Community B consists of insects that perform very different activities. So while both communities have 4 species each, B is more functionally diverse than A. These two ways of measuring diversity, while easy to define, are not the most commonly used. कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजी में कार्यात्मक विविधता मापती है कि जीव अपने पर्यावरण में क्या कर रहे हैं और वे अन्य जीवों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीटों के दो समुदायों की यदि हम तुलना करें जो हमें जंगल के फर्श के दो अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं, हमने इसे कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी में क्लासिफाइड किया। कम्युनिटी ए में गोबर, भृंग, पीली गोबर, मक्खियां और मिलीपेड की 2 प्रजातियां शामिल हैं, जबकि कम्युनिटी बी में गोबर, भृंग, जमीन पर घोंसला बनाने वाली मधुमक्खियां, झींगुर और चींटी की 1 प्रजाति शामिल है। कम्युनिटी ए में केवल वे प्रजातियां शामिल हैं जो कार्य में बहुत समान हैं। वे सभी जानवरों का गोबर खाते हैं और जंगल के फर्श पर सामग्री को विघटित करते हैं। जबकि वहीं देखिए कम्युनिटी बी में ऐसे कीट शामिल हैं जो बहुत अलग अलग गतिविधियां करते हैं। इसीलिए जबकि दोनों समुदायों में 4-4 प्रजातियां हैं,
तो बी ए की कंपैरिजन में कार्यात्मक रूप से अधिक विविध है और विविधता को मापने के ये दो तरीके परिभाषित करने में आसान होते हुए भी सबसे अधिक इस्तेमाल नहीं किए जाते। स्पीशीज डाइवर्सिटी, द नंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज इन ए गिवन एरिया और ग्रुप has been the most common measure of biodiversity for a long time. Species are defined in different ways based on which kind of organisms you are dealing with. For animals, one easy definition has been that individuals of two different species can mate and produce fertile offspring. अर्थात प्रजाति जो होते हैं, प्रजाति विविधता किसी दिए गए क्षेत्र या समूह में जैविक प्रजातियों की संख्या लंबे समय से जैव विविधता का सबसे आम माप रही है। प्रजातियों को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया जाता है, जो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के जीवों के साथ काम कर रहे हैं। जानवरों के लिए एक आसान परिभाषा ये रही है कि दो अलग अलग प्रजातियों के जीव आपस में मिलकर प्रजनन योग्य संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। फॉर microorganisms like bacteria, the definition is based on their genetic. When you zoom into it, the borders of definition of a species are not completely clear. It is a categorization that we make for our convenience, much like how two states or two nations might seem very different, but when you zoom into the border between them, you realize there is a lot more similarity between the two groups of people living on opposite sides of the border. The border is a negotiated construct much like species. बैक्टीरिया जैसे कि सूक्ष्म जीवों के लिए परिभाषा उनके आनुवांशिक पर आधारित है। जब आप इसे जूम इन करते हैं तो किसी प्रजाति की परिभाषा की सीमाएं पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती हैं। यह एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दो राज्य या दो राष्ट्र बहुत अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन जब आप उनके बीच की सीमा को जूम इन करते हैं तो आपको पता चलता है कि बॉर्डर के विपरीत दिशा में रहने वाले दो समूहों के लोगों के बीच बहुत अधिक समानता है। सीमा एक समझौता निर्माण है, ठीक वैसे ही जैसे प्रजातियां हैं। नाउ हाउ टू मेजर द डाइवर्सिटी ऑफ ए कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी की विविधता को कैसे मापें? ईच ऑफ दीज थ्री वेज ऑफ मेजरिंग डाइवर्सिटी डिटेल्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, स्पीशीज रिचनेस इज जस्ट द काउंट ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट स्पीशीज आर इन ए एरिया। विविधता को मापने के तीन तरीकों में से प्रत्येक को अलग अलग संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रजाति समृद्धि सिर्फ इस बात की गिनती है कि किसी क्षेत्र में कितनी अलग अलग प्रजातियां हैं। कंसीडर ए कम्युनिटी ऑफ 100 प्लांट्स where there are 10 plants each of 10 species. It has a species richness of 10. A second community of 100 plants with 91 of one species and one each of 9 other species also has a species richness of 10. The second community is far less diverse than the first, but species richness does not capture that difference. Ecologists have developed many metrics that combine both richness and abundance of species to give better measures of the diversity of a community. The same carries over to measures of functional diversity and phylogenetic diversity, though those are a little less intuitive to understand for a beginner. कहने का मतलब ये कि जैसे 10 पौधों के एक समुदाय पर विचार करें जहां 10 प्रजातियों के 10 पौधे हैं, इसकी प्रजाति समृद्धि 10 है। इसी प्रकार से यदि 100 पौधों का दूसरा समुदाय है
जिसमें एक प्रजाति की 91 और अदर 9 प्रजातियों में से प्रत्येक एक है। इसकी भी प्रजाति समृद्धि 10 है। जैसे कि गेहूं के पौधों के खेत के बारे में सोचें, जिसके किनारों पर कुछ खरपतवार उग रहे हैं। दूसरा समुदाय पहले की तुलना में बहुत कम विविध है, लेकिन प्रजाति समृद्धि उस अंतर को कहीं को नहीं पकड़ती। पारिस्थितिकविदों ने कई मैट्रिक्स विकसित किए जो किसी कम्युनिटी की विविधता के बेहतर माप देने के लिए प्रजातियों की समृद्धि और प्रचुरता दोनों को जोड़ते हैं। यही बात कार्यात्मक विविधता और फाइलोजेनेटिक विविधता के उपायों पर भी लागू होती है। Most people would find the measures discussed above quite abstract. Popular discourse about biodiversity tends to focus on one or a few species in each ecosystem, using their presence as a proxy for the health of a whole ecosystem. There are a couple of different concepts that do this. ज्यादातर लोगों को ऊपर बताए गए उपाय काफी अमूर्त लगेंगे। बायोडाइवर्सिटी के बारे में प्रचलित चर्चा प्रत्येक इकोलॉजी सिस्टम में एक या कुछ प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करती है और उनकी उपस्थिति को पूरे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करती है। और ऐसे करने वाली कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। स्पीशीज शेपिंग इकोसिस्टम्स, पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने वाली प्रजातियां। गवर्नमेंट्स, कंजर्वेशन एजेंसीज एंड द मीडिया पिक ए फ्यू charismatic species to frame conservation efforts. Tigers, elephants, pandas, peacocks, rhinoceros, and orangutans, etc. These are often called flagship species for biodiversity, using the name of one species to try and support whole ecosystem where they are present. However, flagship species are essentially the models picked by the marketing department for advertisements about a company, not the actual workers, engineers or scientists who are actually doing the work of the company. सरकारें संरक्षण एजेंसियों और मीडिया संरक्षण प्रयासों के आकार देने के लिए कुछ करिश्माई प्रजातियों को चुनते हैं, जैसे बाघ, हाथी, पांडा, मोर, गैंडा आदि। इन्हें अक्सर बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रमुख प्रजातियां कहा जाता है, जहां एक प्रजाति के नाम का उपयोग करके पूरे पारिस्थितिक तंत्र को सहारा देने की कोशिश की जाती है जहां वे मौजूद हैं। हालांकि प्रमुख प्रजातियां अनिवार्य रूप में किसी कंपनी के बारे में विज्ञापनों के लिए विपणन विभाग द्वारा चुने गए मॉडल हैं, न कि वास्तविक कर्मचारी, इंजीनियर या वैज्ञानिक जो वास्तव में कंपनी का काम कर रहे हैं। कीस्टोन स्पीशीज आर दोज whose impact on an ecosystem is disproportionately large compared to its abundance. It is named like the small ketone in an earth, which are crucial to keeping the earth from falling. For example, pollinators like bees are crucial to the reproduction of many different plant species. अर्थात कीस्टोन प्रजातियां वे होती हैं जिनका इकोलॉजिक सिस्टम पर प्रभाव उसकी प्रचुरता की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, और इसका नाम मेहराब में लगे छोटे कीस्टोन की तरह रखा गया है, जो मेहराब को गिरने से बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मधुमक्खियां जैसे कि परागकर्ता कई अलग अलग पौधों की प्रजातियों के प्रजनन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। Ecosystem engineers refer to species that significantly change the structure of the ecosystem and which of the other species depend on. Termites are ecosystems engineers in savannas, changing the abundance and regularity of trees that are present. पारिस्थितिक इंजीनियर उन प्रजातियों को कहते हैं जो इकोलॉजिक सिस्टम की संरचना को काफी हद तक बदल देती है और जिन पर दूसरी प्रजातियां निर्भर करती हैं। सवाना में दीमक पारिस्थितिक इंजीनियर होते हैं जो मौजूदा पेड़ों की बहुतायत और नियमितता को बदलते हैं। इंडिकेटर स्पीशीज रिफर टू स्पीशीज whose presence shows the health of the ecosystem. Lichen growing
on trees are quite sensitive to air pollution and therefore their presence indicates that the air is relatively clean in an area. संकेतक प्रजातियां उन प्रजातियों को कहते हैं जिनकी मौजूदगी इकोलॉजी सिस्टम के स्वास्थ्य को दर्शाती है। पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन एयर पोल्यूशन के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं और इसीलिए इनकी मौजूदगी ये दर्शाती है कि किसी क्षेत्र में हवा अपेक्षाकृत साफ है। इनवेसिव स्पीसीज आर स्पीसीज दैट आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम एन एरिया बट आर स्प्रेडिंग रैपिडली एंड डिस्प्लेसिंग लोकल स्पीसीज। लंताना कैमरा एन ornamental shrub brought by the British to be a golden plant is invasive in huge area of the Western Ghats, completely taking over the forest understory. आक्रामक प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं जो किसी क्षेत्र से मूल रूप से नहीं होती लेकिन तेजी से फैल रही हैं और स्थानीय प्रजातियों को विस्थापित कर रही हैं। लैंटाना कैमरा एक सजावटी झाड़ी जिसे अंग्रेजों ने बगीचे के पौधे के रूप में लाया था और जो वेस्टर्न घाट के विशाल क्षेत्रों में आक्रामक है और पूरी तरह से जंगल के निचले हिस्से पर कब्जा कर रही है। However, each of the above categories is also a measure of convenience and is a problematic in many ways. The presence of a keystone species does not mean an ecosystem in good shape, and presence of invasive species does not automatically mean things are bad. Understanding biodiversity and ecosystem health is complex and is important to know and repeat the proxies that we are using to do so. हालांकि उपरोक्त जो लेक्चर में हम शामिल किए उस दी गई कैटेगराइज सुविधा का एक मापक भी है। इसके कई मायने हैं, कई मायनों में समस्याग्रस्त है कि कीस्टोन की प्रजाति की मौजूदगी का मतलब यह नहीं कि पारिस्थितिकी तंत्र अच्छी स्थिति में है और आक्रामक प्रजातियों की मौजूदगी का मतलब यह नहीं कि चीजें अपने आप खराब हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिक सिस्टम के स्वास्थ्य को समझना जटिल है और यह जानना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा करने के लिए किन प्रॉक्सी का उपयोग कर रहे हैं। Now, in this lecture से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं कि इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग हाउ बायोडाइवर्सिटी सस्टेन्स अस इज क्रूशियल फॉर आवर ओन वेलबीइंग कमेंट। अर्थात हिंदी ये हुआ इसका कि यह समझना कि जैव विविधता हमें कैसे बनाए रखती है, हमारे अपने कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। टिप्पणी करें। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू गो अबाउट मेजरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इन ए फॉरेस्ट एज कंपेयर टू ए नियर बाय एग्रीकल्चरल फील्ड। इसका हिंदी अर्थ यह हुआ कि आप किसी जंगल में पौधों की विविधता को पास के कृषि क्षेत्र की तुलना में कैसे मापेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम कॉन्सेप्ट दैट शो स्पीसीज दैट disproportionately save ecosystems critically analyzed with examples। हिंदी में इसकी मीनिंग ये हुआ कि ऐसी कौन सी अवधारणाएं हैं जो दिखाती हैं कि कौन सी प्रजातियां असमान रूप से इकोलॉजिक सिस्टम को आकार देती हैं। उदाहरण के साथ आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करें। तो इस लेक्चर्स को गंभीरता से अटेंड किए होंगे, आप इसकी समराइज कॉन्सेप्ट को समझे होंगे और इसी पर आधारित जो हमने यहाँ पे सामने क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चंस का आप आंसर दें और इसके बाद उसका वैल्यूएशन कराएं और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो एकेडमी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इतना ही, धन्यवाद।